امر بیل نئی تعمیر شدہ منڈی شہر سے باہر اپنے مکینوں کا انتظار کرتی رہی۔ پھر ہر بار نئی آنے والی انتظامیہ اور بلدیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور ہر بار وہ دودھ کی جھاگ کی طرح بیٹھتے رہے۔ بلدیاتی انتخابات میں ہر بار شہریوں سے منڈی کی شہر سے باہر منتقلی کے وعدے پر ووٹ لیے جاتے اور الیکشن جیتنے کے بعد اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا جاتا۔ پھر اس کام کا بیڑا رضی محمد اور عمر جہانگیر نے اٹھایا تھا۔ تمام سیاسی دباؤ کو پس پشت ڈالتے ہوئے سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والے لوگوں کو ڈیڈ لائن دے دی تھی۔ دونوں پر پیچھے سے پڑنے والا دباؤ اس لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دونوں ہی بہت بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی ٹرانسفر کروانا آسان کام نہیں تھا۔ رضی محمود عمر جہانگیر کے بیچ میں سے تھا اور اس کی عمر کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی۔ ایک ہی ضلع میں اتفاقاً ہونے والی تعیناتی کے دوران دونوں کے درمیان ہر معاملے میں اچھی خاصی کوآرڈینیشن رہی اور سبزی منڈی کی تبدیلی کا کام اسی مطابقت کا ایک نتیجہ تھا۔ جب کسی قسم کا کوئی دباؤ کام نہیں آیا تو آڑھتیوں اور بیپاریوں نے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ رضی محمود اور عمر جہانگیر نے بڑے اطمینان سے اس ہڑتال کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ منڈی کے لوگوں کے احتجاج میں اور شدت آ گئی اور مقررہ تاریخ پر ان کی ہڑتال شروع ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر رضی محمود نے قریبی شہر کی سبزی منڈی میں وہاں کے بااثر لوگوں کے ذریعے پھل اور سبزیاں منگوائیں اور شہر میں کئی جگہوں پر انتظامیہ اور بلدیہ کی زیر نگرانی سستے داموں فراہم کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ سارے شہر میں اعلان ہوتا رہا کہ اگلے 2 ہفتوں میں انتظامیہ اور کن کن جگہوں پر ایسے بازاروں کا انعقاد کرے گی اور ان کے اوقات کیا ہوں گے۔ غیر محدود مدت کے لیے شروع ہونے والی ہڑتال اگلے دن ہی ختم ہو گئی۔ انہیں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ایسے کسی اقدام کا اندازہ نہیں تھا۔ ہڑتال ختم ہونے کے باوجود سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والوں کا احتجاج ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں اور شدت آ گئی اور جب مقررہ ڈیڈ لائن پر پولیس منڈی کو خالی کروانے گئی تو آڑھتیوں کی انجمن کے صدر نے انہیں وہ اسٹے آرڈر دکھایا جو وہ کورٹ سے لے چکے تھے۔ عدالت نے ضلعی انتظامیہ کو تب تک سبزی منڈی کو خالی کروانے سے روک دیا تھا جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور مقدمہ کرنے والوں کو یقین تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے میں اتنا وقت ضرور لگ جائے گا کہ عمر جہانگیر اور رضی محمود وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر آنے والے نئے افسر ضروری نہیں تھا کہ ان جیسے ہی ہوتے۔ سبزی منڈی کے لوگوں کو یقین تھا کہ ان کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اسٹے آرڈر دیکھنے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی قیادت میں آنے والا پولیس کا دستہ بڑی خاموشی کے ساتھ سبزی منڈی کے لوگوں کے بلند و بام فاتحانہ نعروں کی گونج میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن سبزی منڈی میں مٹھائیاں بٹتی رہیں۔ انتظامیہ کو ایک بار پھر شکست دے دی گئی تھی۔ انہیں شہر سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ اگلی رات 2 بجے سبزی منڈی کی طرف دوسرے شہر سے آنے والا ٹرک پولیس کے قائم کیے گئے اس ناکے پر کھڑا اوپر لدی ہوئی ایک ایک پیٹی اتروا کر پولیس کے ان 4 لوگوں کو دکھا رہا تھا جو کرسیوں پر بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ اس سڑک پر وہ پہلا ناکہ تھا اور اس ناکے کے بعد آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر 6 اور ایسے ہی ناکے تھے۔ وہ ٹرک جو عام طور پر رات 2:30 بجے کے قریب سبزی منڈی پہنچ جاتا تھا وہ اس دن صبح 10 بجے کے قریب سبزی منڈی پہنچا۔ پولیس نے سبزی منڈی کی دونوں بیرونی سڑکوں کو بلاک کر کے اس پر جا بجا ناکے لگا دیے تھے اور دونوں سڑکیں مکمل طور پر بلاک ہو گئی تھیں۔ پولیس والے ایک ایک پیٹی اترواتے پھر چڑھاتے۔ اگلے ناکے پر پھر یہی عمل دہرایا جاتا۔ اس سے اگلے ناکے کے اوپر بھی یہی ہوتا۔ انتظامیہ نے شہر میں اعلان کر دیا تھا کہ امن و امان کی بگڑی صورتحال کے پیش نظر شہر میں آنے والے تمام ٹرکوں کے سامان کی اچھی طرح چھان بین کی جائے گی اور شہر میں آنے والے زیادہ تر ٹرک سبزی منڈی ہی جاتے تھے۔ نتیجتاً اس ٹرک پر لوڈ سامان کی وجہ سے لمبی قطاریں لگ گئیں اور گرمی کے موسم میں بہت سے ٹرکوں میں لدا ہوا پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگیں۔ دوسرے شہروں سے بھیجے جانے والے پھلوں اور سبزیوں کے سودے ختم ہونے لگے۔ ٹرکوں پر لدے ہوئے پھلوں اور سبزیوں کے خراب
ढेर को खरीदने के लिए सब्जी मंडी में कोई तैयार नहीं था और दूसरे शहरों से लोग अपनी इजलास इस तरह ज़ाया करवाने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस स्टे ऑर्डर की पूरी तरह पासदारी कर रही थी। सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले किसी शख्स को तंग नहीं किया गया था। अलबत्ता अमन अमान की हालत को ठीक रखना एक ऐसा फ़र्ज़ था जो पुलिस को हर सूरत पूरा करना था और ये काम रज़ी महमूद और उमर जहांगीर अपनी निगरानी में करवा रहे थे। छठे दिन पुरानी सब्जी मंडी के लोग खामोशी से नई सब्जी मंडी मुंतकिल होना शुरू हो गए। एक हफ्ते में यह मुंतकिली ख़त्म हो गई। एक हफ्ते बाद पुलिस ने इस सड़क पर तमाम नाके ये कहते हुए ख़त्म कर दिए कि अमन अमान की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आने की वजह से अब इन दो सड़कों पर नाकों की ज़रूरत नहीं रही। पुरानी सब्जी मंडी से नई सब्जी मंडी में मुंतकिली का काम जिस कदर सहूलत से हुआ था और उसके नतीजे में शहरियों को जो सुकून का सांस नसीब हुआ था, उसने रज़ी महमूद और उमर जहांगीर के लिए भी आम शहरियों के अंदर खासे अच्छे जज्बात पैदा किए थे। लोकल प्रेस में शाया होने वाली तारीखी खबरें मुल्की प्रेस में भी आईं और फिर कुछ कॉलम नवीसों के कॉलम्स की ज़ीनत भी बनी। बात शायद यहीं तक रहती तो रज़ी महमूद और उमर जहांगीर का हीरो वाला दर्जा उसी तरह कायम रहता और दूसरे लोगों की तरह अलीज़ा भी यही समझती रहती कि इन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से एक मुश्किल सूरत हाल को हैंडल किया था। मगर सालिया के आर्टिकल ने इस तमाम मामले पर एक नया पर्दा उठाते हुए उमर और रज़ी की हीरो वाली हैसियत को ख़त्म करते हुए उन्हें विलन की हैसियत दे दी थी। सब्जी मंडी की नई जगह मुंतकिली के बाद रज़ी महमूद और उमर जहांगीर ने शहर के वस्त में मौजूद इस सब्जी मंडी की करोड़ों मालियत की ज़मीन को बेचकर रकम आपस में तकसीम कर ली थी और सालिया ने इस फ्रॉड की तमाम तफसीलात को अपने आर्टिकल में शाया किया था। उसने न सिर्फ ज़मीन के लिए नए मालिकान के नामों की तफसील दी थी बल्कि ये भी बताया था कि चंद कॉलम नवीसों को किस तरह रुपया देकर अखबारात में रज़ी महमूद और उमर जहांगीर के नाम नहाद प्रोफेशनलिज्म की तारीफ़ करते हुए उन्हें मिसाली ब्यूरोक्रेट करार दिया गया था। ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन पर इस मुल्क और आने वाली नस्लों को फ़ख्र होगा। दिलचस्प बात यह थी कि पुरानी सब्जी मंडी का इलाका अब शहर के मसरूफ़ तरीन कमर्शियल एरियाज़ में शामिल हो गया था और उसी कमर्शियल एरिया में इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे कॉलम नवीस को भी कुछ ज़मीन अता की गई थी जो अपने कॉलम्स में वक्तन फ़वक्तन अपने आबाई शहर के डिप्टी कमिश्नर और एसपी की तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहता था। सालिया ने ज़मीन के इस टुकड़े की मालियत के हवाले से भी तहरीरी सबूत फराहम किए थे। सालिया के आर्टिकल ने बहुत सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए थे और उस रात इस आर्टिकल को पढ़ते ही अलीज़ा को अंदाज़ा हो गया था कि ये आर्टिकल उमर जहांगीर के लिए खासे मसाइल खड़े कर सकता है और ऐसा ही हुआ था। अखबार के दफ्तर में इस आर्टिकल के हवाले से धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे थे। लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज़मीन की इस खरीदो फरोख्त के हवाले से मज़ीद मालूमात फराहम करना चाहते थे। शाम को वो घर आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अपने अखबार में शाया होने वाला वो आर्टिकल उसे अपने कंधों पर एक बोझ की तरह लग रहा था। वो जानती थी वो आर्टिकल उमर को भी खासा परेशान कर रहा होगा और उमर की परेशानी का तस्वुर उसके लिए बहुत नाखुशगवार साबित हो रहा था। वो अभी अपने कमरे में आई ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। ना चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव की। हेलो अलीज़ा, कैसी हो? दूसरी तरफ से हमेशा की तरह जुनैद ने कहा। बिल्कुल ठीक हूँ, अलीज़ा ने अपने सर का बोझलपन झटकते हुए कहा। बिल्कुल ठीक हो तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है मैं अगले 15 मिनट के बाद तुम्हें डिनर के लिए पिक कर सकता हूँ, जुनैद ने बड़े खुशगवार अंदाज में कहा। वो इनकार करना चाहती थी मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने सर से इस आर्टिकल को झटक देना चाहती थी और इस वक्त जुनैद के साथ गुजारा हुआ कुछ वक्त यकीनन उसे ये मौका फराहम कर देगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप मुझे पिक कर लें, उसने हामी भरते हुए कहा। फ़ोन बंद करके वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसको अंदाज़ा था जुनैद वाकई 15 मिनट बाद यहाँ होगा और वो इसको इंतज़ार नहीं करवाना चाहती थी। 15 मिनट बाद जब वो लॉन्च में आई तो जुनैद वाकई वहाँ मौजूद नानू से गपशप कर रहा था। वो दोनों बाहर निकल आए। गाड़ी में जुनैद उसके साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ रहा। अलीज़ा को हमेशा की तरह अपनी टेंशन रिलीज़ होती हुई महसूस हुई। जुनैद
کم گو مگر اچھی گفتگو کرنے والا آدمی تھا، اور وہ جتنا اچھا سامع تھا جب بولنے پر آتا تو اس سے بھی زیادہ اچھے گفتگو کرنے والا ثابت ہوتا۔ اسی خوبی کے باعث علیزہ نے جنید کو ذہنی طور پر جلد ہی قبول کر لیا تھا۔ کہاں چلیں؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک علیزہ سے پوچھا۔ کہیں بھی، میرے ذہن میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے، علیزہ نے ڈنر کی جگہ کے انتخاب کو اس پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ فاسٹ فوڈ؟ جنید نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ یہ بھی آپ پر منحصر ہے، میں کسی خاص کھانے کا سوچ کر باہر نہیں نکلی، علیزہ نے ایک بار پھر پہلے کی طرح اس سے کہا۔ جنید اس کے جواب پر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر اس نے علیزہ سے کہا، میں آج تمہارے نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس نے علیزہ کے اخبار کا نام لیتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جنید خلاف معمول کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں نے وہ آرٹیکل پڑھا، تمہاری دوست صالحہ کا آرٹیکل۔ علیزہ کو بے اختیار سبکی اور حدت کا احساس ہوا۔ جنید کے منہ سے اس آرٹیکل کا تذکرہ سننا اس کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے خاندان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس نے تمہارے کزن کے بارے میں لکھا ہے، عمر جہانگیر۔ تمہارا وہی کزن ہے نا جس سے میں ملا تھا، اور یہ آرٹیکل اسی کے بارے میں ہے نا؟ جنید نے جیسے تصدیقی چاہی۔ علیزہ نے کچھ خفت کے عالم میں سر ہلا دیا۔ کافی فضول باتیں لکھی ہیں صالحہ نے، جنید نے اس کے سر ہلانے پر تبصرہ کیا۔ علیزہ خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔ اس قسم کے بے بنیاد الزامات لگانا جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا، جنید کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس آرٹیکل کے شائع ہونے سے پہلے صالحہ نے اس کے بارے میں بتایا ہوگا؟ اچانک اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں اسے منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری فیملی کے بارے میں اس طرح آرٹیکل نہ لکھے، جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ علیزہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کیسے منع کر سکتی تھی؟ جنید اس کی بات پر گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری دوست ہے، تم چاہتی تو اسے منع کر سکتی تھیں، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے منع نہیں کر سکتی تھی، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ جنید نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جرنلسٹ دوستوں کے کہنے پر اپنی کہانیاں نہیں بدلا کرتے، اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ جنید اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ علیزہ ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تم کیا بات کر رہی ہو علیزہ؟ یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور یہاں جرنلسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، کیونکہ آخر تم اس پروفیشن سے منسلک ہو۔ وہ جنید کے منہ سے پہلی بار اس قسم کا بے لاگ تبصرہ سن رہی تھی، اور شاید اس تبصرے نے اسے کچھ دیر کے لیے حیران بھی کر دیا تھا، اس لیے وہ جنید کی بات کے جواب میں فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ جنید کو یکدم احساس ہوا کہ علیزہ کو شاید اس کی بات بری لگی تھی۔ میں نے ایک جنرل تبصرہ کیا ہے، میں کسی خاص شخص کے حوالے سے ایسا نہیں کہہ رہا، اس نے وضاحت کی۔ میں صالحہ سے وہ آرٹیکل شائع نہ کرنے کے لیے کیوں کہتی؟ اس نے سنجیدگی سے جنید سے پوچھا۔ جنید نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیونکہ وہ تمہاری فیملی کے ایک فرد کے بارے میں تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں تھا؟ جنید اس پر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ یکدم بہت سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ جرنلسٹ کو بے بنیاد الزامات لگانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ صالحہ کا کہنا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات نہیں ہیں۔ ہر چیز اس وقت تک بے بنیاد ہوتی ہے جب تک اس کے بارے میں ثبوت نہ دیے جائیں۔ صالحہ نے اپنے آرٹیکل میں اتنے ثبوت دیے ہیں جتنے ضروری تھے۔ ایسے ثبوت کوئی بھی دے سکتا ہے۔ 4-6 لوگوں کے بیانات اور چند کاغذات کی نقول کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر ایک اہم عہدے پر فائز شخص کے بارے میں اخبارات میں کوئی چیز شائع کر دی جائے۔ وہ اس پر جنید کی بات پر خاموش رہی۔ ایک ذمہ دار جرنلسٹ کی ذمہ داری صرف دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہی نہیں ہوتی، حقائق کو حقائق بنا کر پیش کرنا بھی ہوتا ہے، مرچ مسالہ لگا کر انہیں بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرنا نہیں۔ جنید بولتا رہا۔ تم تو خود جرنلسٹ ہو، ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، تمہیں صالحہ سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ جنید نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ میں اس سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے صالحہ کو عمر جہانگیر سے اپنے کسی تعلق کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا فیملی ممبر ہے۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی۔
तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। जुनैद ने कुछ देर के बाद कहा, मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा। ये उमर जहांगीर और सालिहा का मसला है, मैं इसमें क्यों आऊँ? उसने बड़ी सख्तमहरी से कहा, ये सिर्फ उमर जहांगीर और सालिहा का मसला नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली का भी मसला है। उमर तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली के एक शख्स का नाम ख़राब हो तो पूरी फैमिली पर असर हो जाती है। तुम इतने मैच्योर तो हो कि ये बात समझ सको। जुनैद तहम्मुल भरे अंदाज में उसे समझाता रहा। ये बात उमर को सोचनी चाहिए। वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व क्यों होता है कि बाद में प्रेस के हाथों स्कैंडलाइज हो। अगर उसको खुद अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत या रेपुटेशन की परवाह नहीं है तो कोई दूसरा क्यों करे? अलीज़ा ने एक बार फिर सर्द मेहरी से जवाब दिया। उसे जुनैद के मुंह से उमर के लिए निकलने वाले ये हमायती फिक्रे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे इस आर्टिकल की किसी बात पर यकीन नहीं है। मुझे वो सिर्फ एक डिफेमेशन कैंपेन का हिस्सा लगे। जुनैद ने कंधे उचकाते हुए कहा। अलीज़ा ने जुनैद को गौर से देखा। उमर मेरा कज़न है। मैं उमर को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसके बारे में भी मेरी राय आपसे ज़्यादा अहम है। और मैं सालिहा को भी अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी डिफेमेशन कैंपेन का हिस्सा नहीं हो सकती, उसने मुस्तहकम अंदाज में कहा। और आखिर वो ऐसी किसी कैंपेन का हिस्सा क्यों बनेगी? उसकी उमर जहांगीर से कोई मुखालफत है, ना ही उसे किसी से कोई फ़ायदा हासिल करना है। उमर वही काट रहा है जो उसने बोया है। उसने कंधे उचकाए। सालिहा के पास इस आर्टिकल के लिए मटेरियल कहाँ से आया? वो तो आमतौर पर ऐसे इश्यूज़ पर नहीं लिखती। जुनैद ने अचानक उससे पूछा। ये मैं नहीं जानती। सालिहा से इस आर्टिकल के बारे में मेरी कोई बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। अलीज़ा ने कहा। क्या ये हैरानकुन बात नहीं है कि सालिहा ने एकदम इस किस्म का मुतनाज़ा इशू लेकर उस पर लिखा, जबकि उसे उसका कोई तजर्बा है, ना ही इस हवाले से उसका कोई बैकग्राउंड है। ये बात इतनी हैरानकुन नहीं है जितनी आपको लग रही है। वो जर्नलिस्ट है, जब चाहे जिस चीज़ के बारे में लिख सकती है। अहम बात तो सिर्फ ये है कि जो चीज़ लिखी जाए वो अच्छी तरह लिखी जाए और उसमें कोई झोल ना हो। और मैं समझती हूँ कि उसके इस आर्टिकल में कोई झोल नहीं है। अलीज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन सालिहा के पास इन तमाम बातों के बारे में इतनी मालूमात और सबूत कहाँ से आते हैं? क्या वो उमर के शहर गई थी? जुनैद ने पूछा। नहीं, वो वहाँ नहीं गई। उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे जर्नलिस्ट से ली है। अलीज़ा ने कहा। दूसरे जर्नलिस्ट से? जुनैद कुछ हैरान हुआ। हाँ, एक दूसरे जर्नलिस्ट से। वो इस इशू पर काम कर रही थी। इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसने उससे मदद ले ली। अलीज़ा ने बताया। किस जर्नलिस्ट से? जुनैद ने पूछा। आप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ये हमारा मसला नहीं है, ये उम्र का प्रॉब्लम है। हम ख्वाह इसके बारे में क्यों परेशान हों? अलीज़ा ने जुनैद की बात का जवाब देने के बजाय कहा। क्या तुम्हें ये हैरानी की बात नहीं लग रही कि सालिया ने एक दूसरे जर्नलिस्ट की फ्राहम करदा मालूमात अपने आर्टिकल में शामिल की? ये प्रोफेशनलिज्म है। इन चीज़ों को शाया करना ये कहकर कि ये प्रूफ्स ऑथेंटिकेटेड हैं, जबकि दर हकीकत आप खुद भी उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते। जुनैद ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह कोई बात नहीं है, हम लोग अक्सर आपस में मालूमात का तबादला करते रहते हैं। अलीज़ा ने उसके एतराज़ के जवाब में कहा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो तो? जुनैद ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। ऐसा नहीं होता, अलीज़ा ने मध्यम आवाज़ में कहा। हो भी सकता है, आखिर जर्नलिस्ट पर वही तो नज़र नहीं होती। हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं जिनके बारे में हमें ये यकीन हो कि वो गलत नहीं है। हम जानते हैं कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपना इमेज भी ख़राब करेंगे और अखबार का भी। अलीज़ा ने वजाहत करते हुए कहा। सालिहा को किसने इन्फॉर्मेशन दी थी? जुनैद ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय उससे पूछा। ज़ैनुल आबिदीन ने, अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। ज़ैनुल आबिदीन ने? वो चौंक सा गया। और आप जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन गलत इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं कर सकता। कम अज़ कम इस मामले में उसकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। अलीज़ा ने कहा। मगर ज़ैनुल आबिदीन के पास उमर के बारे में इतनी मालूमात कैसे आ गई हैं? उमर और उसका तो दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। जुनैद ने कहा। ज़ैनुल आबिदीन उमर के बारे में अगले कुछ हफ्तों में किसी असाइनमेंट पर काम करने वाला है और वो इसी सिलसिले में उमर के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा है।
अलीज़ा ने लापरवाही से खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। किस तरह की असाइनमेंट? क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? जुनैद ने उससे पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हो सकता है इसी तरह के छोटे मोटे मामलात हों, अलीज़ा ने अपनी राय दी। मगर ज़ैनुल आबिदीन छोटे मोटे मामलात पर तो काम नहीं करता, जुनैद बड़बड़ाया। हो सकता है ज़ैनुल आबिदीन के नज़दीक ये छोटा मामला ना हो, उसके अलावा भी कोई और बात हो जो उसकी दिलचस्पी का बायस हो, अलीज़ा ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, जानता हूँ, उसके नज़दीक एक दिलचस्पी की और क्या वजह हो सकती है, जुनैद बेख्तियार बड़बड़ाया और अलीज़ा ने हैरानी से उसे देखा। आप ज़ैनुल आबिदीन को ज़ाती तौर पर जानते हैं? उसने जुनैद से कहा। किसी हद तक। तुम सालिया से कहो वो इन मामलात से दूर रहे, ये बहुत ख़तरनाक मामलात हैं और बेहतर है वो किसी दूसरे के हाथ का हथियार न बने, जुनैद ने अचानक गाड़ी एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में दाखिल करते हुए कहा। जुनैद, आप चाहते हैं मैं सालिया को धमकाऊं? अलीज़ा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नहीं, मैं चाहता हूं तुम एक अच्छी दोस्त की तरह उसे अपने आर्टिकल तहरीर और शाया करने की सूरत में पेश आने वाले इक़दामात और ख़तरात के बारे में आगाह करो, जुनैद ने गाड़ी रोकते हुए कहा। मुझे उम्मीद तो यही है कि वो तुम्हारी नसीहत पर कान नहीं धरेगी, मगर फिर भी तुम अपना फ़र्ज़ तो अदा कर दो। सालिहा को क्या ख़तरा हो सकता है? वो उलझे हुए तासुरात के साथ जुनैद को देखने लगी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं मुतलका पार्टी नहीं हूँ। ये तो मुतलका पार्टी बता सकती है कि वो ऐसी सूरत हाल में क्या कदम उठाती है, जुनैद ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। फ़र्ज़ करें अगर ये आर्टिकल आपके बारे में होता तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? अलीज़ा ने बड़ी संजीदगी से कहा। मेरा रद्द-ए-अमल? जुनैद चंद लम्हे सोचता रहा। मैं मिस सालिहा पर केस करता और उसको कोर्ट में ले जाता, हितक इज़्ज़त के दावे में, जुनैद ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। न सिर्फ उसे बल्कि उसके अखबार को भी। ये आप उस सूरत में करते अगर इल्ज़ामात गलत होते। फ़र्ज़ करें अगर इल्ज़ामात सही होते तो फिर आप क्या करते? जुनैद अलीज़ा का चेहरा देखने लगा। तब तो आप कभी भी उसे कोर्ट में ले जाने का नहीं सोच सकते थे। तब आप क्या करते? मैंने ऐसे ही किसी इक़दाम से बचने के लिए तुम्हें सालिया को मुहतात करने के लिए कहा है, जुनैद ने पुरसकून अंदाज में कहा। यानी आप भी ये समझ रहे हैं कि ये इल्ज़ामात गलत नहीं? जुनैद कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सका। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। क्या आपसे अंकल अयाज अब्बास ने मुझसे या ये सब कुछ कहने के लिए कहा है? अलीज़ा ने पुरसकून आवाज़ में पूछा। नहीं, जुनैद ने गाड़ी बंद कर दी। फिर आप इस सारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? उसके लहजे में सर्द बहरी थी। मैं आज आपको ये साफ साफ बता दूं कि मेरा ख़ानदान सिर्फ मेरा ख़ानदान है, वो आपका ख़ानदान नहीं है, और मैं ये पसंद नहीं करूँगी कि मेरे ख़ानदान के बारे में मुझे कोई मशवरा दे या मेरे ख़ानदान के किसी मामले को इतनी तफसील से ज़ेरे बहस लाए। जुनैद हक्का बक्का उसे देखता रहा। अंकल अयाज के ख़ानदान से आपके ताल्लुकात कितने गहरे हैं या अब्बास भाई से आपकी दोस्ती की नोयत क्या है, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली अपने दोस्तों के लिए किसी किस्म के मशवरे नहीं चाहती, ना आज ना आइंदा कभी। अब आप मुझे घर वापस छोड़ आएँ, अलीज़ा, जुनैद ने जैसे बेयकीनी के आलम में कहा। मुझे घर छोड़ दें, अलीज़ा ने जुनैद के लहजे पर तवज्जो दिए बगैर इस तरह कहा। इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है तुम्हें? जुनैद अब भी हैरान नजर आ रहा था। मुझे घर छोड़ दें, उसने जुनैद के सवाल का जवाब दिए बगैर कहा।